आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में सदर कांग्रेस और सीनियर खातून क़ायद सोनिया गांधी से की मुलाकात। काबीना की तौसी और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में दिखाई गई हरी झंडी। किसानों के खर्चात की माफ़ी के वादे खोखले। बीजेपी रुकने पार्लियामान डी अरविंद ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से जॉब मेले का हफ्ते को एहतमाम। मुतलाशिया ने रोजगार से शिरकत की अपील। बीआरएस पार्टी वफद ने केटीआर की क़यादत में डीजीपी तेलंगाना से की मुलाकात। तिरुमलगिरी में एहतजाजी कैंप पर कांग्रेस कारकुनों की जानिब से की गई हरकत के खिलाफ की गई शिकायत। दुंडीगल और अमीरपेट हदूद में कत्ल की वारदातें। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। देखते हैं खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर और कारगुजार सदर बीआरएस पार्टी के.टी. रामाराव ने बीआरएस क़ायदीन वफ़द के हमरा डीजीपी तेलंगाना से मुलाकात की और कांग्रेस कारकुनों के ख़िलाफ़ शिकायत करते हुए कार्रवाई की इस्तदा भी की। वादा मीडिया से बात करते हुए बीआरएस क़ायदीन ने बताया कि तिरुमलगिरी में बीआरएस एहतजाजी कैंप पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया था और इस सिलसिले में डीजीपी से सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की गई। నిన్న ఒకటే రోజు రెండు ఉదంతాలు, ఈ రెండు ఉదంతాలు కూడా ఇప్పుడే రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ గారికి వివరంగా ఆధారాలతో సహా వారికి సమర్పించడం జరిగింది. వారికి కొన్ని వీడియోలు కూడా చూపెట్టడం జరిగింది. నిన్న సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గం తిరుమలగిరి కేంద్రంలో అక్కడ మా మాజీ శాసనసభ్యుడు తమ్ముడు విద్యార్థి నాయకుడిగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించి అంచెలంచెలుగా ప్రజల ఆశీస్సులతో 2 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైన సీనియర్ నాయకుడు తమ్ముడు గ్యాదర్ కిషోర్ గారి నాయకత్వంలో ఆ నియోజకవర్గ రైతాంగం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో దాదాపు ఒక 500-600 మంది గుమిగూడి శాంతియుతంగా ట్రాఫిక్కి అంతరాయం కాకుండా ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టకుండా కేవలం నిరసన చెప్పే క్రమంలో తమ కార్యక్రమం తాము నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. 50 మంది కిరాయి మూకలు, కాంగ్రెస్ గూండాలు తాగిన మత్తులో అక్కడ స్థానిక పోలీస్ యంత్రాంగంతో కుమ్మక్కై ఆ నిరసన శిబిరం మీద దాడి చేసి ఆకస్మికంగా సుతిల్ బాంబులేసి గుడ్లు, చెప్పులు, రాళ్లు కొట్టి హింసాయుత వాతావరణాన్ని కల్పించే ప్రయత్నం చేసినారు. మా వాళ్ళు నిజానికి కనుక తిరగబడితే నా 50 మంది కాంగ్రెస్ మూకలో, కాంగ్రెస్ గూండాలలో ఒక్కడు కూడా మిగిలేటోడు కాదు. కానీ హింస ప్రజాస్వామ్యంలో హింస సమాధానం కాదు కాబట్టే మా వాళ్ళు గమ్మున ఉన్నారు. నిన్న దుర్మార్గం ఏంటంటే పోలీసు వాళ్ళు స్వయంగా స్థానిక పోలీసులు ఆ నిరసన శిబిరం యొక్క టెంట్లు కూడా వాళ్ళు కూల్చేసి ఆ గూండాలకు వత్తాసు పలకడం ఏదైతే ఉందో ఇది రాష్ట్రంలో నడుస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి అనే ఒక పిరికి పంద పరిపాలనకు ఇది సంకేతంగా, నిదర్శనంగా మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ప్రజల్లోకి పోయి రైతులకు సమాధానం చెప్పే దమ్ము లేని దద్దమ్మ ఈ ముఖ్యమంత్రి. మేము అడిగినాం, చేతనైతే రా, ఏ ఊరికి పోతావో రా, ఏ మండలానికి పోతావో పోదాం, నీ కాన్స్టిట్యున్సీ కొడంగల్ పోదామా, లేదా నీ సొంత ఊరు, నువ్వు పుట్టిన ఊరు కొండారెడ్డిపల్లె పోదామా, వస్తావా అని అడిగినాం. ఎక్కడికి రాలేదు. కానీ ఢిల్లీకి పోయినాడు 20వ సారి. సిగ్గు లేకుండా ఢిల్లీకి తొత్తుగా, ఢిల్లీకి గులాముగా ఇలా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు గల్లీలో తిరిగి ప్రజలు అవస్థల్లో ఉంటే క్షేత్రంలో తిరగాల్సిన ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు
ఇవాళ అడ్డగోలుగా ఈ రకంగా పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని ఈ రకంగా కిరాయి గూండాలను అడ్డం పెట్టుకొని ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసి గొంతు నొక్కాలనే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నిన్నటికి दलित बंधु स्कीम फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाने के मुतालबे के साथ प्रजा भवन के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रकम बैंक खातों में मुंतकिल की जाए। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। दलित बंधु फंड्स की फराहमी के लिए जुमे को प्रजा भवन के सामने धरना दिया गया। दलित बंधु फंड्स के मुस्तहिकीन ने हुकूमत से फंड्स की 2 किस्तों की रकम बैंक खातों में जमा करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। उनका कहना है कि फंड्स की इजराई के बावजूद अब तक रकम बैंक खातों में जमा नहीं कराई गई है। दलित बंधु साधना समिति के ज़ेरे एहतमाम ये एहतजाज किया गया था। उन्होंने फंड्स की रकम के अदम डिपॉजिट पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का भी इंतबा दिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने रात के औक़त में ख़वातीन के लिए शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इत्तलात को अफवाह करार दिया है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक अफवाह फैलाई जा रही हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान पुलिस को कॉल करने पर ख़वातीन को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। इस झूठे पैगाम में लिखा गया है कि 1091 पर कॉल करने पर पुलिस की गाड़ी आएगी और आपको उनकी मंजिल तक ले जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने इस पर वजाहत करते हुए कहा कि ख़वातीन को रात के औक़ात में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत के नाम पर जो पैगाम फैलाया जा रहा है वो झूठा प्रोपोगंडा है। ख़वातीन इस पर यकीन न करें। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर ने सड़क पर ट्रैफिक के बीच में करेंसी नोटों को उड़ाते हुए सोशल मीडिया के लिए रील बनाई। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग पैसे लेने के लिए वहां जमा हो गए। बताया जाता है कि यूट्यूबर ने 100 रुपये के करेंसी नोटों को सड़क पर हवा में उड़ाया था। इससे मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसकी सोशल मीडिया सारिफीन ने शदीद मजम्मत की है। सोशल मीडिया सारिफीन हैदराबाद पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर पावर हर्षा उर्फ महादेव के खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने ये स्टंट किया। एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ सारिफीन ने पुलिस से शिकायत की है कि वो बेटिंग ऐप्स जैसी चीज़ों को फ़रोग़ देकर कमाई गई रकम को ज़ाया कर रहा है। एक और सिटीज़न ने पुलिस से कहा कि वो अवामी परेशानियां पैदा करने के लिए इसके खिलाफ कार्रवाई करे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बेरोज़गार मर्द व ख़वातीन के लिए हफ्ता 24 अगस्त को ग्रैंड एम्पीरियल फंक्शन हॉल चादरघाट में जॉब मेले का एहतमाम किया है। इस जॉब मेले में कई कंपनियां हिस्सा ले रही हैं।
IVNAT एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग इदारे के ताउन से मुनक़िद होने वाले इस जॉब मेले में IT, नर्सिंग, ई-कॉमर्स, रियल इस्टेट, नॉन स्किल बैंकिंग, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, BPO, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के शोबे में रोज़गार के मौक़े दस्तयाब होंगे। 10वीं जमात कामयाब, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, BTech, MTech उम्मीदवार इस ग्रैंड जॉब मेले में हिस्सा ले सकते हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मर्द व ख़वातीन को इस ग्रैंड जॉब मेले से इस्तिफ़ादे की अपील की है। सदर मजलिस की हिदायत पर यहाँ पर मलकपेट में कल इम्पीरियल गार्डन के अंदर एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसमें करीब 65 से ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर हिस्सा लेगी, जिसके अंदर ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, IT प्रोफेशनल्स, नॉन IT प्रोफेशनल्स सब लोग इसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, नौजवान बच्चों को रोज़गार दें। अब जैसा बाज़ मखसूस इलाक़े हैं, जैसा अपने IT हो या नॉन IT हो, या आजकल डिजिटल मार्केटिंग का भी सबसे ज़्यादा दौर चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हो, इसके अंदर 10th पास बच्चे अगर से कुछ वहाँ पर सेलेक्ट भी होते हैं, कुछ उनको समझ में भी आता है, तो हम मजलिस की जानिब से उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए हम फ्री में यहाँ पर हमने जगह तय की है। जो वहाँ पर बच्चे जो आएंगे उनको अगर से डिजिटल मार्केटिंग या उससे रिलेटेड कोई कोर्स के अंदर सीखना भी है तो हम फ्री में उनको वो भी ट्रेनिंग देंगे मजलिस की जानिब से। और टॉमकॉम से भी हम वहाँ पर एक सेंटर लगा रहे हैं, जो अब्रॉड भेजने के लिए भी जो लोगों को, जो बच्चों को स्किल्स है, उन लोग भी वहाँ पर वो सेंटर लगा रहे हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल एक कोशिश है मजलिस की जानिब से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ताकि वो लोग आएँ। और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मजलिस हमेशा लगाती रही है, और मलकपेट में सालाना तौर पे हम हमेशा लगाते हैं, इस बार भी हम लगाए हैं। तो आप तमाम से ही गुजारिश है कि इसमें आकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। अब तक करीब 1000 के करीब लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आकर भी वहाँ पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराकर जो भी आपके हिसाब से जो सूटेबल कंपनी है उसमें इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2024-25 के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 1225.43 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा कल्याण लक्ष्मी दरखास्तों के साथ नई दरखास्तों के लिए फ़ंड्स जारी किए हैं। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से फ़ंड्स की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया है। रियासत तेलंगाना में हुक्मरान जमात कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी BRS के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। इसी बीच आलेर के रुकने असम्बली भीरला एलैया ने यदाद्री मंदिर को पानी से धोते हुए दावा किया कि BRS लीडर और साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने मंदिर की रिवायत की खिलाफ वर्जी करते हुए मंदिर को नापाक कर दिया है। इस सिलसिले में भास्कर राव ने पुलिस से शिकायत भी की है और हरीश राव समेत BRS के कई अरकान असम्बली पर यदाद्री मंदिर में किसी दूसरे पुजारी की मय्यत में पूजा का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि BRS लीडरान की इस हरकत से मंदिर नापाक हो गया है। उधर टाउन के CI का कहना है कि साबिक़ वज़ीर हरीश राव समेत दीगर अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले के परवाड़ा में वाक़ जवाहरलाल नेहरू फार्मेसी में पेश आए हादसे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए विशाखापट्टनम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ज़ख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक है। बताया जाता है कि केमिकल की आमिज़श के दौरान यह हादसा पेश आया। मुतासरीन में से एक की शिनाख्त विजयनगरम के केमिस्ट सूर्य नारायणा और झारखंड के 3 दिगर लाल सिंह कोहर और रूसा की हैसियत से की गई है।
हादसे की इत्तला मिलते ही वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तफसीलात तलब की हैं। साथ ही रियासती वज़ीर दाखिला को आला हुकाम के साथ जाए हादसे के दौरे की भी हिदायत दी है। डॉक्टरों की लापरवाही का एक और वाक़या सामने आया है। ज़िले नलगुंडा के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक हामिला खातून ने कुर्सी पर बैठे बैठे बच्चे को जन्म दिया है। डॉक्टरों ने डिलीवरी के लिए मज़ीद ताख़िर का बहाना बनाकर हामिला खातून को बरामदे में चहलकदमी का मशवरा दिया था। चहलकदमी के दौरान खातून दर्द की शिकायत के बाद कुर्सी पर बैठ गई और उसने कुर्सी पर बैठे बैठे बच्चे को जन्म दिया। बताया जाता है कि निरूडोगोमा से ताल्लुक़ रखने वाली अश्वनी नामी हामिला खातून डिलीवरी के लिए देवरकुंडा सरकारी हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन हॉस्पिटल के तिब्बी अमले ने उसे ज़िले नलगुंडा के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफर कर दिया। जब हामिला खातून नलगुंडा हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टरों ने उसे बरामदे में चलने का मशवरा दिया, क्योंकि डॉक्टरों का मानना था कि डिलीवरी के लिए अभी वक्त है। लेकिन जब हामिला खातून चहलकदमी के बाद दर्द की शिकायत से कुर्सी पर बैठ गई तो उसी वक्त बच्चे की विलादत हो गई। इत्तला मिलते ही ज़िला एडिशनल कलेक्टर ने वाक़े की तफसीलात तलब कर ली हैं। उन्होंने बताया कि तहकीकात के बाद कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और सीनियर कायद सोनिया गांधी से मुलाकात की। राय के मुताबिक रियासती काबीना में तोसी और नामजद ओहदों को पुर करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया और कांग्रेस हाईकमान ने इस सिलसिले में वज़ीर आला को हरी झंडी भी दिखा दी है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने नई दिल्ली में जुमे के रोज़ काफ़ी मसरूफ़ तरीन दिन गुजारते हुए दोनों कायदीन ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात करने की ज़राए ने इत्तला दी है। इस मुलाकात में वज़ीर आला ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर नए कायद के तकर्रुर के अलावा अपनी काबीना में तोसी करने और नामजद ओहदों के अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई करने और वरंगल के किसानों की जानिब से इजहार तशक्कुर के जलसे में शिरकत के अलावा तारीख़ को खतियत देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। सदर तेलंगाना जनरल समिति व रुकन खानसाज कौंसल प्रोफेसर कोदंडाराम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीआरएस कायदीन ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा का रुकन बनाने की पेशकश की गई थी। उन्होंने बताया कि इसमें ज़रा बराबर भी हक़ाइक़ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सिक्योरिटी को महज इसलिए वापस कर दिया गया क्योंकि वो अवामी कायद है और हमेशा अवाम के दरमियान रहना चाहते हैं और सिक्योरिटी के साथ ये नामुमकिन था। कोदंडाराम ने वज़ीर आला की जानिब से किसानों के खर्चात की माफ़ी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वज़ीर आला तमाम 31,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने साबिक़ वज़ीर आला प्रकाशम पंतुलू की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे वाक़े असम्बली पर फूल मालाएँ पेश करते हुए बताया कि प्रकाशम पंतुलू ने तेलुगु ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए जो जिद्दोजहद की, जिसे आंध्रा और तेलंगाना की आवाम हमेशा याद रखेगी। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो दुनिया के किसी भी मुकाम पर क्यों ना खिदमत अंजाम दे रहे हों, इस बात का ख्याल रखा जाए कि अपनी मादरी ज़बान में बात करें। इस मौके पर साबिक़ रुकन खानसाज कौंसल बीजेपी रामचंद्र राव भी मौजूद थे।
बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनके काबीनी वज़रा की जानिब से किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात की माफ़ी के वादों को खोखला करार देते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 30% किसानों के ही खर्चात माफ़ करने के इक़दाम किए। डी अरविंद ने वजाहत की कि बीजेपी से ना तो KCR, ना तो KTR और ना ही कविता से कोई ताल्लुक़ात हैं। उसकी बनिस्बत कांग्रेस और BRS एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, जिसका सबूत BRS के अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बंजारा हिल्स में मस्जिद मुनीर अहमद मदरसा इफ्तिकारिया मुल्हिका मदरसा इक़बाल सन सिटी की संग बुनियाद तकरीब और जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब व जलसे में मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आमिल अलमारूफ जाफ़र पाशा अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम, मौलाना मुफ्ती सैयद आसिफुद्दीन नदवी ख़ासमी ख़तीब मस्जिद यासीन के अलावा मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शिरकत की। मोतमद इदारा खलीलुर्रहमान ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि ज़ियाउर रहमान मौलाना अब्दुल क़ादिर क़ासमी ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। जलसे से उलमाए कराम ने खिताब भी किया। है, मेरा बच्चा उसके बाद का हिस्सा पढ़ देता है, मेरी बेटी उसके बाद का हिस्सा पढ़ देते हैं। इस तरीके से हम रोज एक पारे को खत्म कर देते हैं। रोज एक पारा हमारे घर में पढ़ा जाता है। आज मुसलमानों के घरों में कुरान सुनने के लिए रखी गई है। मुसलमानों के घर में कुरान। दुंडीगढ़ पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक तांडे में खातून पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल के बाद खातून की नाश को ब्लैंकेट में छुपा दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया खातून की शिनाख्त 45 साला पी शांति की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही दुंडीगढ़ पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और नाश बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना करने के बाद इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। అక్కడ నుంచి లోపలికి పోతారు జర చెప్పు నాయకు చెప్పు ఎంత సైడ్ పోతుంది ఎవరు పోతుందని చెప్పి अमीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक शख्स पर हमला करते हुए उसे सड़क पर ज़ख्मी छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो ज़ख्मों से जान बर ना हो सका। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब उन्होंने उस शख्स को देखा तो वो खून में लथपथ सड़क पर पड़ा था। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और नाश बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना किया गया और पुलिस ने करीबी CCTV से उसके फुटेज हासिल की और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
स्पेशल ऑपरेशन टीम राचाकुंडा ने कीसरा पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस एक गैंग का पर्दाफाश किया और धोखाधड़ी में मुलविस 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। गैंग के कब्जे से 1,57,000 नकद रकम के अलावा फर्जी स्टैम्प्स और दीगर अशिया बरामद की गई। मुलजिमीन ने अपने आप को हुकूमत के आला अहदेदार बताते हुए डबल बेडरूम अलॉट करवाने और जॉब दिलाने का झांसा दिया और तकरीबन 1,29,00,000 रुपए की धोखाधड़ी में ये गैंग मुलविस पाई गई। 6 मेंबर गैंग को अभी हमारा एसओटी ऑफिसर्स और कीसरा पुलिस स्टेशन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन में उसको अरेस्ट किया। उसमें टोटल वो 107 पीपल को अभी तक चीट किया। वो 3 काइंड ऑफ चीटिंग्स किया। एक ये डबल बेडरूम फ्लैट्स दिलवाते थे बोल के ये फेक अलोकेशन सर्टिफिकेट क्रिएट करके उनसे पैसे ले लिया। और दूसरा है जॉब फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में जॉब मिलेगा बोल के उनसे ऐसा चीट करके उनसे भी पैसे ले लिया। और थर्ड ऑफेंस है वो क्या किया, एक हमको जॉब होना बोल के एक सोशल इंटरेस्ट स्कूल का प्रिंसिपल को फ़ोन करके वो आके जॉब में ज्वाइन होने के 1-2 दिन उधर टीचिंग करने के बाद वो बोला प्रिंसिपल मैडम को भी ट्रांसफ़र कर सकते बोलता। वो प्रिंसिपल मैडम दूसरा प्रिंसिपल को बोला। सो 2 principals they agreed and they also told other employees also that because an important functionary in the government, advisor to government public affairs, श्री वी एम नरेंद्र रेड्डी साहब का नाम बोल के नहीं उनका मैं बात कर रहा हूँ बोल के उनसे as if he was talking to them types they made a phone call, they made others to believe that advisor to public affairs made a phone call to them, and then they started believing and started paying money. But they also tried to cheat same way. The fraudsters extended their tentacles to perform in the different areas. They reached out to civil servant also, secretary social welfare Gurukula school तक भी जाके वो transfer के लिए पूछा, but in the process she did not do. It happened a few days ago. Later on we got the information. Some gullible people is this way they got cheated बोल के हमको समझ में आया। वो information के बाद और इंट्रोगेट इन्फॉर्मेशन के बाद हम इन्वेस्टिगेट स्टार्ट किया। देन वी गॉट द अक्यूज। इसमें टोटल 107 पीपल को चीट किया। 6 अक्यूज इसमें सुरेंद्र रेड्डी, रोज और ये अंजय्या, वेंकटेश, गोपाल नायक एंड हर्षिनी रेड्डी। उसमें अलोकेशन करने के समय ये सर्टिफिकेट देने के समय कुछ डिले हो रहे, अलोकेट नहीं हो रहे ये डबल बेडरूम फ्लैट्स। वो समय में क्या बोल रहे ये आरडीओ मैडम बोल के हर्षिनी रेड्डी फ़ोन करके हम दिलवा देते हैं तो टाइम लगेगा ऐसा बोल के उनको कन्विंस करने का ट्राई किया। विद दिस हमको कम्युनिकेट कर रहे कोई लोग ऐसा नेम ड्रॉपिंग में बड़ा लोगों का नाम बोलने में कोई ऐसा दे शुड नॉट बिलीव इट। वो ऐसा इन्फॉर्मेशन रहता तो आप पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दीजिए सो दैट वी विल इन्वेस्टिगेट एंड गेट द अक्यूज। ज़िले गदवाल जोगुलांबा इलाके में वाक़ई खेत में मगरमच्छ देखी गई, जिसके बाद खेतों में काम करने वाले मज़दूरों में हलचल हुई और उन्होंने फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा पुलिस और महकमे फॉरेस्ट को मुतल्ला किया, जिसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया। शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि बारिश की वजह से तालाब लबरेज हुए और यही वजह है कि मगरमच्छ रुई के खेत तक पहुँच गई। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में सदर कांग्रेस और सीनियर खातून क़ायद सोनिया गांधी से की मुलाकात। काबीना की तौसी और नामजद ओहदों पर तकर्रात के सिलसिले में दिखाई गई हरी झंडी। किसानों के खर्चात की माफ़ी के वादे खोखले। बीजेपी रुकने पार्लियामान डी अरविंद ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से जॉब मेले का हफ्ते को एहतमाम। मुतलाशिया ने रोजगार से शिरकत की अपील।
बीआरएस पार्टी वफद ने केटीआर की क़यादत में डीजीपी तेलंगाना से की मुलाकात। तिरुमलगिरी में एहतजाजी कैंप पर कांग्रेस कारकुनों की जानिब से की गई हरकत के खिलाफ की गई शिकायत। दुंडीगल और अमीरपेट हदूद में कत्ल की वारदातें, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।